جی السلام علیکم. ہمارا آج کا شو سوال یہ ہے کے ساتھ شاہد آوان اور حمید شاہد. آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں صنفی امتیاز، کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ. آج ہم کوشش کریں گے کہ حمید شاہد صاحب کے ساتھ مل کے اس موضوع کو تھوڑا سا کھنگالیں اور دیکھیں کہ یہ کتنا ہم سے ریلیونٹ ہے اور اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. جدیدیت کے ساتھ، ماڈرنٹی کے ساتھ، مغربیت کے ساتھ اور کیپیٹلزم کے ساتھ، اور خاص طور پہ گزشتہ ایک دہائی میں جو میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ساتھ، جہاں بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مغرب سے آئی ہیں اور چھا گئی ہیں، اور ہم نے بغیر سوچے سمجھے، خواہش سے یا مجبوری میں ان کو اختیار کر لیا ہے. ان میں کچھ نعرے بھی ہیں، کچھ کانسیپٹس بھی ہیں، اور سب سے زیادہ مقبول نعرہ وہ صنف یا جینڈر کے حوالے سے ہے، حقوق نسواں کے حوالے سے ہے. ویسے تو یہ کانسیپٹ میرا خیال ہے 40-50 سال پہلے ہمارے یہاں آیا، اور آزادی نسواں کے نعرے آئے، حقوق نسواں کی تحریکیں آئیں اور عورت کے حقوق کی بات ہوئی. لیکن جس تیزی سے منظرنامہ گزشتہ ایک دہائی میں بدلا ہے، اور یہ سوال تقریباً گھر گھر کا سوال بن گیا ہے، اور دور کسی قصبے، کسی چھوٹے شہر میں رہنے والے فرد، مرد یا عورت تک بھی اس کی گونج اب پہنچی ہے، اور وہ بھی اس سوال کا مخاطب بن گئی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ واقعی یہ میرا سوال ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اور میں بھی اس سے کسی نہ کسی طرح سے ریلیونٹ ہوں. بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کا ایگزیکٹ مطلب کیا ہے، ہمارے لیے یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے، اور کیا واقعی یہ اس سوال کے ساتھ، اس ایشو کے ساتھ، اس نعرے کے ساتھ جڑے جتنے مسائل، جتنے پہلو، جس انداز میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ ہمارے لیے زمینی حقیقت ہے، یہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہے؟ کیا یہ ایشوز اس طرح سے ہمارے ایشوز ہیں بھی یا نہیں؟ ہم اپنے سماج میں، اپنے اپنے ماحول میں، اپنی تاریخ میں اور اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے اگر اس ایشو کو دیکھیں تو شاید بہت سی چیزیں ہمارے لیے اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہے جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ بھی تمہارا ہے. وہ مسئلہ شاید ہمارا ویسا اس سطح پہ، اس انداز میں نہیں ہے. اور اس کے برعکس اور بہت سے مسائل ایسے شاید ہوں جو ہمارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ وہ وہاں پہ نہیں ہیں تو اس پہ اس طرح سے بات، اس انداز میں بات نہیں ہو رہی جیسا کہ ہونی چاہیے. تو حمید شاہد صاحب، یہ ایک سوال ہے جس کو آج ہم نے اپنی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے. تو کچھ ابتدائی آپ اس پہ بتائیے، اس کے کیا پہلو ہیں، اس کی کیا مانویت ہے، ہمیں اس کو کس طرح سے لینا چاہیے؟ یہ واقعی اتنا ہے، حقیقت ہے، فسانہ ہے، کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل شاہ صاحب، پہلے تو آداب. بہت شکریہ. یہ موضوع واقعی اہم ہے، لیکن اس لیے اہم نہیں ہے کہ ہمیں مغرب نے سلجھایا ہے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. صحیح. یہ بہت پہلے سے اہم چلا آ رہا ہے. یعنی ہوں. اگر ہم مذہبی حوالے سے دیکھیں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے جس طرف اشارہ کیا وہ عورت کے حقوق کی طرف ہی تھی. وہاں جی. جو کچھ عورت کے ساتھ ہو رہا تھا معاشرے کے اندر، جس طرح اسے ایک طرف پھینک دیا گیا تھا، تو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہی بہت سارے قوانین بنے اور بنائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بڑے دائرے بنتے ہیں اس موضوع کے. یعنی ایک تو یہ ہے صحیح. کہ ہمیں ایک اصطلاح آ گئی، فیمنزم کی اصطلاح آ گئی، جینڈر کی اصطلاح آ گئی، اور جنرل اسٹڈیز پورا ایک سبجیکٹ بن گیا اور آپ کے اداروں میں، جی. اسکولوں میں، کالجوں میں یہ پڑھایا جانے لگا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اصطلاح آتی ہے تو وہ اپنی ساری خوبیاں خرابیاں ساتھ لے کے آتی ہے. وہ ہوں. اصطلاح اس طرح نہیں آتی کہ آپ کو اسے اپنے علاقے، اپنے ماحول کے مطابق اس کی آپ تشریح فرما سکیں، بلکہ وہ صحیح. اپنی تشریحات ساتھ لے کے آتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو ہمارے اپنے انڈیجنس مسائل نہیں ہوتے. ہاں. عورت کا اور مرد کا ظاہر ہے دو ایسے یہ جوڑا انہی سے مکمل ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اور معاشرے کے اندر، اور جب ہوتا ہے تو ان کے درمیان مسائل بھی ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو دونوں کو سماج کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کس طرح کرنا ہے، اور اس تعامل کے دوران انہیں اپنی حیثیت کو کس طرح برقرار رکھنا ہے. کیا یہ تعلق جو ہے وہ بالکل ایکویلٹی کی بنیاد پہ ہوگا یا ایکویٹی کی بنیاد پہ ہوگا؟
यानी शराकत की बुनियाद पे होगा कि सिर्फ बराबरी की बुनियाद पे होगा। शराकत से ये होता है कि आप जिंदगी के अंदर शरीक होते हैं और जितने आप उसके अंदर उसे परफॉर्म कर सकते हैं अपनी सलाहियत के मुताबिक वो आप परफॉर्म करते हैं और दूसरा बाकी बोझ उठा लेता है। लेकिन इक्विटी का ये है कि आप मर रहे हैं या बहुत ताकतवर है, दोनों सूरतों में आपने वो एक जैसा बोझ दोनों ने उठाना है। तो पहला सवाल तो बुनियादी यही है, और ये सिर्फ यहाँ का सवाल नहीं है, ये पूरी दुनिया के मर्दों के लिए है, एक बुनियादी सवाल है। तो पहले तो ये सबसे पहले नारा जो बुनियादी तौर पे वहां पे लगा, और उन्होंने इक्विटी दी भी नहीं है, उन्हें लिबास में तक में नहीं इक्विटी दी है। भाई आप सर्दियों में जाके देख लीजिए, वो बेचारी जो है औरतें टांगों से ठिठर रही होती हैं, लेकिन मजबूर हैं इसलिए कि उन्होंने एक लिबास का फैशन दे दिया है कि मर्द ने पूरा लिबास पहना है और औरत ने आधा पहनना है। तो इक्विटी तो वहां भी नहीं है, और वहां आप देखिए एक पूरी मार्केट वहां पे डेवलप हो गई, जिसे आप सेक्स मार्केट कहते हैं। मुझे याद है मैं गया था थाईलैंड, और थाईलैंड की मार्केट्स के अंदर मैंने जो चीजें बिकती हुई देखी हैं, आप उनका तस्वुर नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि सीधी सादी औरत की तजलील है। तो सवाल ये है कि आप जिस मुल्क के अंदर जाएं, जिस मुआशरे के अंदर जाएं, उसके अपने मसाइल हैं, उसके अंदर ही उन्हें रख के देखा जाना चाहिए। एक तो ये है, पहली तो बात ये है कि सिनफी मसाइल महज अफसाना नहीं है, ये मानना पड़ेगा, ये हैं, लेकिन इसका तनाजुर जो है वो हमारा अपना है, उसके अंदर ही रख के देखना पड़ेगा। एक दायरा हमारा मजहब का बनता है, क्योंकि हमारी अक्सरियत इस मुल्क की जो है वो मुसलमानों की है, लिहाजा वो मजहब के हवाले से इस मसले को देखेंगे, और अगर हम इसे काट के दिखाना चाहेंगे तो हम भी नाकाम होंगे, और हमें ऐसा रद्द अमल आएगा जो हमारे लिए और ज्यादा खतरनाक होगा, और वो होता है इंतहा पसंदी का। कि वो जितना ही आप इस मसले को समझे बगैर इसे रद्द करने की कोशिश करेंगे, आप इंतहा पसंदी को दावत देंगे, और उसका मुजाहरा हमने देखा है। दूसरा दायरा बनता है हमारे उस इलाके का, कि जिस इलाके के अंदर वो लोग रह रहे हैं। मसलन बलूचिस्तान के अंदर आप जाके देखेंगे, वहां औरत किसी और रहन सहन के साथ वो रह रही होती है, और उसके मसाइल और तरह के होंगे। सिंध के इंटीरियर में चले जाएंगे, आपको मसाइल और तरह के नजर आएंगे। आप सरहद के KPK में चले जाएंगे, आपके उसके मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इनके मसाइल और तरह के। इसी तरह ही आप जिस इलाके के अंदर चले जाएंगे तो फिर एक इलाकाई दायरा बनता है, जिसके अंदर देखेंगे फिर जो हमारी अपनी जो रस्म और रवाज हैं, उनके अंदर बहुत सारी खराबियां दर आई हैं। तो वो एक दायरा वो भी बनता है कि आप एक सोसाइटी के अंदर वो आते आते उनके अंदर वो इतनी रसूख कर गई हैं कि बात चीजों को जो मजहब का हिस्सा भी नहीं है, उन्हें हम मजहबी सतह पे बरतने लगते हैं। यानी वो इतनी रवायात है जिन्हें हम समझ लेते हैं कि यार ये रिवाज है, ये तो हमारे मजहबी करीब है। ये सारे वो दायरे हैं जिनके अंदर औरत का किसी न किसी सतह पे मर्द के साथ वो इक्विटी वाला रिश्ता कायम नहीं हो रहा, बल्कि उन जगहों पे उसके साथ ज्यादती भी हो रही है। इसे तस्लीम किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अमीर साहब। ये अभी जो आपने एक बात की ना, मैं तो इससे जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, वो जो आपने शराकत और बराबरी की बात की है, मेरा ख्याल है ये तो उस बुनियादी नारे की नफ़ी है, और बजा तौर पे नफ़ी है कि औरत और मर्द बराबर हैं। यानी ये देखने में एक भला सा खूबसूरत सा जुमला है, और बगैर सोचे समझे हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने इसको अख्तियार कर लिया, और ख़ास तौर पे सदियों से कुचली औरत को तो शायद इस नारे में कोई अपने को दर्द का दरमा नज़र आया, या फैशन में अख्तियार किया, या जैसे भी किया, जो कि अपनी बुनियाद में बिल्कुल गलत नारा है। आपने बजा तौर पर जो बात शराकत की है, वो बड़ी अहम बात है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ चीज़ें और हैं। मसलन जब हम ये बात करते हैं, मगरब से नारा आया, ठीक है, हमने उसको अडॉप्ट कर लिया, इख्तियार कर लिया, हमने भी वो नारा लगाना शुरू कर दिया। हमारी खातून को बड़ा अच्छा लगा कि उसके हुकूक की बात है, उसकी शख्सियत का इसमें इजहार होता है, और बड़ा खूबसूरत इजहार हो रहा है। उसके साथ बहुत सी और चीज़ें आ गई, बहुत से और नारे आ गए, बहुत से और शेड्स आ गए, बना बनाया पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट मिल गया, एक पूरी मूवमेंट मिल गई, उसकी सपोर्ट मिल गई। उसमें और भी कई चीज़ें हैं, फंडिंग के पहलू भी हैं, रिकग्निशन की, शनाख्त की मामलात भी हैं। लेकिन ये जो इसकी गहराई है, जिस तरफ आपने इशारा किया, और खुद मगरब जहाँ से ये चीज़ आई है, वहाँ पे जो औरत का इस्तेहसाल खुद इस नारे की बुनियाद पे हो रहा है, अभी तक हो रहा है,
اور جو اس کی مظلومیت کی تصویر وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، جس طرح سے اسے آزادی کا دھوکہ دے کر اپنے مقصد کے لیے پورے سسٹم نے، نظام نے، سرمایہ دار نے اور مرد نے یوں کہہ لیجئے استعمال کیا ہے اور ابھی تک استعمال کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہونے کے باوجود، ہر انفارمیشن دستیاب ہونے کے باوجود، ہماری عام عورت، عام لڑکی، آج کل کی پڑھی لکھی، خاص طور پہ ہم شہروں کی بات کرتے ہیں، وہ اس چیز کو اس گہرائی میں نہیں دیکھ پا رہی اور وہ ابھی تک اس فریب کا شکار نظر آتی ہے؟ کیا یہ وقت کب آئے گا کہ جب ایک سٹیپ آگے جا کے وہ اس کی اصل چیز کو، اس کی اصل کیفیت کو، اس کی اصل جو معاملہ ہے اس کو سمجھ کے اپنے اصل مسائل کو اپنی بنیاد پہ، اپنے تناظر میں، اپنے بیک گراؤنڈ میں، اپنے پرسپیکٹو میں، اپنی اصطلاحات کے ساتھ مخاطب کرے گی اور شاید پھر ہم حل کی طرف بھی آگے جا سکیں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا ہے۔ ایک خاتون ہے اسما برلاس، جی ان کی کتاب کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے گزری تھی، ری انڈرسٹینڈنگ اسلام۔ جی انہوں نے عورت کے جو مسلم معاشرے کے اندر جو ہیں اس عورت کے مقام کے حوالے سے کچھ باتیں بڑی مزے کی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور بھی کہا ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ جو فیمنزم کی اصطلاح ہے نا، یہ انگریزی استعماریت کی دین ہے۔ تو یہ جینڈر ہے، جینڈر ایکویلٹی ہے، استعماریت ہے، تو استعمار کیا چاہتا ہے وہ آپ کو اصطلاحیں دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جتنی آلائشیں ہیں وہ دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اصل جو مسائل ہیں فوکس نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے وومن کا جو عورتوں کا جو دن منایا گیا اور مارچ ہوا، تو اس میں مسائل کی طرف، ایشوز کی طرف کم ذکر ہوا، اس میں نعرے لگائے گئے۔ اصل میں جو عورت زندگی کے اس جہنم میں ایندھن بنائی جا رہی ہے یہاں کی، اس کے مسائل جو ہیں انہیں تو آپ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور آپ ایک فیشن زدگی میں ایسے نعرے لگاتے ہیں جو گلیمر تو آپ سمجھیے وہ سامنے آتا ہے، لیکن عورت کے مسئلہ سامنے نہیں آتا۔ مثلا سب سے بڑے عورت کے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں گھر میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، کیا اسے زندگی کی وہ سہولتیں میسر ہیں جن کی وہ حقدار ہے؟ کیا اس عورت کو عورت سمجھا، یعنی انسان بھی سمجھا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ اب دیکھیے، بہت میں اس لیے اہم بات کر رہا ہوں، جب مجھے یاد ہے میں وہ آدمی ہوں جو کشور نائک نے جب شروع میں باتیں کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ آپ یہ نعرے غلط کرتے ہیں، آپ عورت کو باہر نکال رہے ہیں، گھر سے باہر نکال رہی ہیں اور آپ رشتوں سے منحرف کر رہی ہیں فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جب مجھے اندازہ ہوا، جب میں ملک کے مختلف گوشوں میں گیا، اپنے ہی ملک کے، سندھ کے اندرون گیا، بلوچستان کے اندرون آگے تک گیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں تو عورت کی حالت بہت دگرگوں ہے۔ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ یعنی پنجاب کے اندر تو ایک بڑا محاورہ ہے نا کہ یہ جوتی کی طرح ہے، بھائی اسے جب چاہو اتار پھینکو، یعنی اس حد تک آپ اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو جب آپ عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے تو آپ اسے حقوق کیسے دیں گے؟ آپ دیکھیے، جب وراثت کا معاملہ آتا ہے، یہاں کا پنجاب کا فیروز جو ہے، کہاں کتنے ہیں لوگ، کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کا حصہ جانے دیتے ہیں، کتنے جو فوت ہوتا ہے اور ان کا باپ فوت ہوتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ساری زمین ہے وہ بیٹوں کے میں چلے گی، حتیٰ کہ بن بیاہی رہ جاتی ہیں بچیاں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے جس کی طرف اشارہ ہم کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس سماج کے اندر ایسی تبدیلی لے آئیں کہ اس عورت کا، اس بچی کا، اس کو اس کا شراکت ملنا چاہیے حصہ۔ اچھا اب دیکھیے کہ جو نکاح ہو رہے ہیں بچیوں کے یا شادیاں ہو رہی ہیں، تو یہ اس کا حق ہے عورت کا کہ وہ ہاں اور نہ کرے، اس رشتے کو قبول اور نہ قبول کرے۔ لیکن میں نے ایسے واقعات بے تحاشا دیکھے اور سنے اور ان کا مشاہدہ کیا ہے جہاں عورت کے سر کو پکڑ کے علاج دیا جاتا ہے یا اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ لیا جاتا ہے۔ جی رضامندی۔ یعنی اب یہ جو تذلیل ہو رہی ہے عورت کی، بنیادی مسائل تو یہ ہیں، بنیادی اچھا اب دیکھیے، ایک سطح پہ مذہب جو ہے وہ عورت کو جو توقیر دیتا ہے، اب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی عورت کو آدھا کر دیا، عورت کو آدھا نہیں کیا مذہب نے۔ پہلا تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے
कि औरत को आधा नहीं किया। मसलन विरासत की बात हो रही है, तो फौत होने वाला जब फौत होता है तो सबसे पहले किसे कहा जाता है कि वो आए और उसकी विरासत को जो ढेर पड़ा हुआ है उसमें से 1/8 हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आ जाए, तो वो औरत होती है और उसकी बेवा। ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं जी नहीं, वो तो देखें बच्चियों के तो आधा हिस्सा है ना, तो बेटों का एक हिस्सा है। तो भाई मजहब ने तो ये कहा है कि भाई आप निकाह करोगे और एक खानदान बनाओगे, और जब खानदान बनाओगे तो जिस फर्द के साथ आप निकाह होगा वो आपको देने का पाबंद है, आपके हकूक को देने का, जिम्मेदारी उठाने का। तो 2 हिस्सों में वहां जाकर तुम शरीक हो जाओगी और एक हिस्सा यहाँ से जाओगी, इसलिए कि ताकि तुम बिल्कुल ही उनके दस्ते करम पे ना रहो और उसके दस्ते नगर न बन के रह जाओ, तो यहाँ से भी लेके जाओगे। और कितना बड़ा हुक्म है कि औरत को अगर मर्द नहीं दे रहा तो वो उसके अगर जेब से निकाल लेती है पैसा और अपनी जरूरत पूरा करती है तो वो सारिक नहीं है, वो ये कर सकती है। ये फिक़्ह का मसला है। और अगर मर्द करेगा उस औरत में से निकाल के तो वो सारिक हो जाएगा, उसके हाथ काट देंगे। तो ये देखें, ये ऐसे मसाइल मजहब के जिनके बारे में हम ना। अच्छा, फिर ये जो गवाही की बात की जाती है वो भी एक फिक़ही मसला है मेरा कहना। हमारे इसके बारे में दूसरी राय भी दी हुई है, और वो जो है वो लिख लेने की जो बात हुई है उसमें भी वो सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरी औरत अगर आप भूल जाए तो वो आपको याद दहानी करा दे, तो वो रेफरेंस ही और है। वो तो उससे बहुत सारा बोझ उठाने की बात है, उसपे बोझ डालना नहीं है, कम करने की बात। लेकिन खराबी ये होती है कि ये जो मकददा तबका है ना, ये इसको एक दूसरा रुख देता है। सही। देखिए, अभी ये जो आपने बात की है ना मिरास के हवाले से और इस्लाम में जो हकूक हैं, अब ये मिरास का मामला, जिम्मेदारियों का मामला, इसको मगरिब ने जिस तरह से हल करने की कोशिश की अपने कानून के ज़रिए और औरत को बराबरी की बुनियाद पे वो हक दिया जो शायद हमारे यहाँ हमारे मज़हब में उस तरह से बज़ाहिरन नहीं दिया जाता, तो उसका वहाँ रिज़ल्ट ये निकला कि वहाँ पे शादी का इदारा ही तकरीबन मादूम होता जा रहा है और लोग शादी से ख़ास तौर पे मर्द भागने लगे हैं। तो उसका अल्टीमेट नुकसान भी वहाँ की औरत को ही हो रहा है। तो ये जो फिक्री हल है वो एक अलग चीज़ होती है, और हम जिसको बराबरी कोट अनकोट उसकी बुनियाद पे कोई अपनी अकल के एतबार से फैसला करने की कोशिश करते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और एंगल से इसको देखने की कोशिश करता हूँ। यानी एक बुनियादी सवाल है। बात यह कि इंसानी माशरे में, इंसानी समाज में मसाइल तो होते हैं। क्या ये लाजिम है कि हम मसाइल की तकसीम लाजिमन सिन्फ की बुनियाद पे करें या उनको सिन्फ की ऐनक से देखा जाए? क्या हर मसला अपनी बुनियाद में इसी नौइयत का लाजिमन होता है? कुछ मसाइल तो होंगे, ठीक है, वो एक फ़िज़िकल जो फ़र्क है औरत और मर्द में, उस हवाले से कुछ चीज़ें पर्टिकुलर होंगी डेफिनेटली, जो सिर्फ औरत से मखसूस होंगी, कुछ मर्दों से मखसूस होंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर मसाइल, बेशतर मसाइल का ताल्लुक हमारे कुछ और मामलात से होता है। मतलब एक फ़र्द कमज़ोर है। आपने अभी सिंध की बात की कि वहाँ औरत के कोई हुकूक नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है उसको। मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे शायद मर्द के साथ भी ऐसा ही मामला है। जो ज़ालिम है वहाँ का, जो जागीरदार है, जो वडेरा है, वो अपने मज़ारीन के साथ कैसा सलूक करता है, आप देखिए ज़रा। तो वहाँ पे मामला तो हाकिम और महकूम का है, कमज़ोर और गालिब और मगलूब का है, कमज़ोर और ताकतवर का है। औरत चूँकि बहुत सी जगहों पे कमज़ोर होती है, तो वहाँ कमज़ोर होने की हैसियत से ताकतवर मर्द या कोई और ताकतवर औरत भी वो उसके साथ ज्यादती कर रही होती है। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। ये जो तबकाती तकसीम है ना, बुनियादी तौर पे एक फलसफा तो ये मौजूद है और ये हकीकत भी है, ये महज फलसफा ही नहीं है कि जहां भी आप जिस ग्रोह के पास या जिस फर्द के पास इख्तियार आता है, जिस तबके के पास इख्तियार आता है, वो उस इख्तियार को मुनसिफाना इस्तेमाल नहीं करता है, लिहाजा कवानीन का सहारा लिया जाना चाहिए। इसलिए कवानीन बनते हैं समाज के अंदर। देखें, फर्द मुतलक जो है वो आज़ाद नहीं है, यानी बिल्कुल ऐसा आज़ाद नहीं है जिस तरह जंगल के अंदर जानवर आज़ाद होते हैं कि वो हर फर्द अपनी मर्जी से वो सारे काम करता चला जाए। यानी फर्द की आज़ादी भी एक हद तक एक लिमिटेड है, और वो लिमिटेड क्या है, वो ये है कि जो आपके हकूक हैं, यानी जो आपका हाथ है दूसरे की नाक तक नहीं पहुंचे, दूसरे के चेहरे तक नहीं पहुंचे। यानी आप हाथ हिला सकते हैं, पूरी तरह घुमा लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हाथ एक
थप्पड़ बन के दूसरे के चेहरे पे रसीद हो जाए। तो दूसरे के भी हकूक हैं, तो वो आपको पाबंद करता है, बहुत सारी जगहों पे पाबंद करता है, और वो हकूक का और फराइज का एक तयन होता है, और आप फॉलो कर रहे होते हैं अपना बहुत सारे इख्तियारात, और स्टेट को दे रहे होते हैं, इसलिए कि वो कानून साजी करे, और कानून साजी करने के बाद आप जाहिर है इसमें करें। पाकिस्तान के अंदर भी आप ये देखें, औरत के लिए ये हकूक हैं वो बाकायदा मुतय्यन हैं। आप जो आईन पाकिस्तान की क्लास नंबर 17 है, अभी मैं देख रहा था, तो देखिए उसमें बाकायदा उनके हकूक को उसमें ये कहा गया है कि महज सिर्फ की बुनियाद पे आप उनके हकूक जो है वो मर्दों से कम नहीं करेंगे। सही है। यानी आप देखिए बहुत सारे मामला हैं जिनमें सिर्फ का उस तरह अपना दखल नहीं है, बल्कि एक इंसानी वजूद के तौर पे आप दोनों को देखा जाना है। और उस सूरत में आपको मसलन आप ऑफिस में काम कर रही है, एक बच्चियां जाके काम करती हैं, एक जाहिर है वो अपनी एक प्रोडक्ट बना रही हैं और उसे बेचने के लिए मार्केट के अंदर जा रही हैं, तो इस बुनियाद पे कि ये औरत बेचने के लिए आई है तो आप उसकी प्रोडक्ट को कम नहीं कर सकते, या इसलिए कि ये काम आपके पास उतना ही टाइम आपके पास लगा कि उतनी स्किल आपको दे रही है आपके ऑफिस में, तो फिर आप उसका जो उजरत है उसे कम नहीं कर सकते। ये उसके बुनियादी हकूक हैं, ठीक है। और इन हकूक को जाहिर है उसी तरह ही हमारे यहाँ अमल दरामद होना चाहिए, जबकि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देख लेंगे कि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता है। बड़ी मजे की बात जो कि एक 27 जुलाई 2019 को पंजाब जुडिशल एकेडमी लाहौर में हमारे चीफ जस्टिस गए थे वहां पे, तो जो कॉन्फ्रेंस हुई वो सिंफी तशद्दुद के हवाले से थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनके कोर्स जो है वो अलग बनाए जाने चाहिए, इसलिए कि वो कोर्स में जाके औरतें वो अपने ऊपर जो कुछ बीत रही होती है उसे दुरुस्त तौर पे बयान नहीं कर सकती हैं उस माहौल के अंदर। तो ऐसा भी मसला है कि जुल्म हो रहा होता है हमारे यहाँ औरत के ऊपर, और वो जाके कोर्ट के अंदर इसलिए नहीं जाती कि वहां उसकी तजलील की जाती है, वहां उससे तरह तरह के ऐसे सवालात किए जाते हैं जो जिससे उसकी तौहीन होती है, और मेरा ख्याल है ये बहुत शदीद बात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये देखें। हाँ, तो अच्छा, लेकिन दूसरी जगह पे आप एक और भी देखिए कि एक और कॉन्फ्रेंस हुई है ख्वातीन जजेस की, वो 1 दिसंबर को हुई है, और वो हुई है ख्वातीन जजेस के हवाले से। तो उसमें मसला क्या डिस्कस हो रहा है, मीडिया के अंदर मौजूद है, आप जरा देखिए अखबारात में वो आई थी। उसमें ये हुआ कि जनाब जब ये औरतें जज होती हैं तो जो मर्द वकील हैं उसमें पेश होने से कतराते हैं और अपनी तौहीन समझते हैं, और समझते हैं कि नहीं हमें इनके सामने पेश नहीं होना चाहिए, हम कमतर तो नहीं है इनसे, तो वो अपने शर्म महसूस करते हैं कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। हालांकि उनके फैसलों से जो मुतलका अफराद होते हैं, जो यानी उनके जो साइलीन होते हैं, वो मुतमईन होते हैं कि उन्होंने बहुत अहम फैसले किए हैं और दुरुस्त किए हैं, इसलिए कि उनके हाँ फैसले उस सख्ती से और नहीं बल्कि हमदर्दी की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किए जाते हैं। तो अब ये बहुत सारे मसला। अच्छा, फिर इसी तरह देखिए औरतों का, मैं ऑफिस में चूंकि रहा बड़ा अरसा, तो हमने यहाँ देखा है कि हमारे ऑफिस में जब किसी ऑफिस के अंदर कोई लड़की दाखिल हो जाती है तो हमारे लोगों के लिबास भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और उनकी गुफ्तगू भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, उनका लहजा भी बेहतर होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर तमीज भी आनी शुरू हो जाती है, और जो ही वो अलग होती हैं तो मुमकिन है उनके बारे में वो बातें भी करना शुरू कर देते हैं, और एक दूसरे के साथ वो गालम गलौज भी शुरू कर देते हैं। तो ये मसाइल तो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, जो कुछ तो हैं जिन्हें कानून की सूरत में हमें दुरुस्त करना है, और कुछ हैं जो हमें तरबियत भी अपने इस मुआशरे के अंदर करनी चाहिए। और ये मुआशरा जो है, जैसे आप जैसे लोग उनकी तरबियत कर सकते हैं जो मुख्तलिफ चैनल चला रहे हैं, ये जो टीवी वाले हैं, जो कौमी अदारे हैं, ये कर सकते हैं, प्रेस कर सकता है। तो ये जब तक इन चीजों को उजागर नहीं करेंगे, लोगों के ज़हनों में नहीं डालेंगे, तो मामला हल नहीं होंगे। अच्छा, बिल्कुल आपने ये बड़ा अच्छा कहा। अभी आपने ना एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है। अब यही बात है कि प्रोपेगेंडा जिसको कहते हैं, आपने कहा जी जूती समझा जाता है औरत को। अब मैं सच्ची बात है कि ये इसका इतलाक शायद औरत पे नहीं होता, मतलब औरत तो माँ भी है, औरत बीवी भी है। ये बीवी के मामले में तो ये बात सही होगी बहुत जगहों पे,
لیکن ساتھ ہی ماں بھی ہے جس کی جوتی کھانے کو شاید وہی مرد اعزاز بھی سمجھتا ہے. وہ تو یہ وہی بات ہے جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ یہ جینڈر ریلیٹڈ ایشوز نہیں ہیں. بہت سے چیزیں بہت سے مسائل کی نوعیت دوسری ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ نعرے بازی کے چکر میں اور امپورٹڈ نعرے اور فیشن اور ایجنڈا، ہم ہر چیز کو پروپیگنڈا کا شکار کر دیتے ہیں اور اپلائی کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا خیر، اب ہم اپنے چونکہ اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو میں اگر آپ سے یہ کہوں، یہ پوچھوں کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں 1 2 3 جن کو ہمیں اس ایجنڈے، اس نعرے یا اس موومنٹ سے الگ کر کے اپنے طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ماحول اور اپنے اپنے کلچر اور ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ 1 2 3 کیا چیزیں آپ بتائیں؟ اچھا، آپ بالکل اچھا، الگ ہونے اور نہ ہونے میں دونوں چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں جنہیں سمجھ لینا مناسب. مثلا یہ دیکھیں کہ میں بحیثیت مرد بہت ساری چیزیں جب کھوجتا ہوں تو میں عورت کے رخ سے نہیں دیکھ سکتا. تو صحیح کچھ صحیح اسٹڈیز ہونی چاہیے صحیح بات ہے. قوانین کی، اور بہت سارے ہمارے فکریات کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم صحیح ہے. عورت کے نقطہ نظر سے دیکھیں کہ کیا. مثلا میں اس کی مثال یہ، مثلا آپ دیکھیے فرہنگ آصفیہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، تو اس میں یا نور اللغات اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے محاورے ایسے ہیں جس میں عورت کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب اچھا، آپ عام بول چال میں دیکھ لیں، لوگ گالیاں جو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساری گالیاں جو ہیں ہماری ماؤں کی، بہنوں کی گالیاں ہوتی ہیں. اچھا تو ہمیشہ کیا میں سبب ہے؟ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں یہ اکثر بات ہم سنتے ہیں بہت سے لوگوں سے، خاص طور پر خواتین کی طرف سے، کہ جی گالی عورت کے نام سے گالی کیوں دی جاتی ہے. اس کا اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کریں تو بیسیکلی ایک شخص جو کسی دوسرے کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اس کا مقصد اس کی توہین ہوتا ہے، اس کی تذلیل ہوتا ہے، اور وہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کمزور جگہ پہ حملہ کرتا ہے، یا اس رشتے پہ حملہ آور ہوتا ہے جس رشتے کو وہ اپنی عزت سمجھتا ہے. اب اپنے گھر کی خواتین کو، وہ اس کے رشتے میں ماں ہو، بہن ہو، بیوی، بیٹی، کوئی بھی ہو، ہر مرد اپنے لیے پرائڈ سمجھتا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے. لہذا اگر ایک ظالم نے یا دشمن نے گالی دینی تو وہ وہیں پہ حملہ کرے گا. تو یہ بھی ایک اینگل ہے اس چیز کو دیکھنے کا. یہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رویہ درست نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی دشمنی مرد کے ساتھ ہے. آپ نے جو کچھ کرنا ہے اس مرد کے ساتھ کریں. میں اگر میری دشمنی مرد کے ساتھ ہے تو میں یہ نہیں، میں اس کی عورت کو اٹھا کے اغوا نہیں کر لوں گا. ہاں صحیح ہے. اس لیے کہ یہ ظلم ہوگا. میں اسے گالی بھی نہیں دوں گا، یہ بھی ظلم ہوگا. یہ گالی بھی دراصل اسی طرح ہی اس کی توہین ہے اس عورت کی، جس طرح آپ اسے اٹھا کے لے آئے تو توہین ہوگی. اور اس کے لیے جو اس کا جرم نہیں ہے، جو عورت کا جرم نہیں ہے، تو آپ اسے گالی نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک اور نعرہ بھی جو ہمارے ہاں جو مغرب زدہ خواتین ہیں وہ اٹھاتی ہیں کہ دیکھیے جی، آپ عورت کو جو ہے اپنی اس کے ساتھ اپنی جو غیرت ہے اس کو کیوں وابستہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ غیرت کو تو عورت کے ماتھے کا جھومر ہونی چاہیے. یعنی یہ مرد کو اگر وہ بے غیرت ہوگا تو وہ کیا مرد ہوگا؟ پہلی بات تو یہ اسے غیرتوں سے آنی چاہیے کہ جو اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، چاہے اس کا بیٹا ہو، چاہے اس کی بیٹی ہو، جیسے کوئی بھی ہو، اگر وہ آپ کے اندر غیرت نہیں ہے اور اس کا آپ تحفظ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ چل نہیں سکتے ہیں اور اس کا احترام نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا احترام کروا نہیں سکتے ہیں، تو پھر سب سے بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ خرابی آپ کے اندر ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ جو ہے وہ عورت اپنی عزت خود کرا سکتی ہے، تو بھائی پھر آپ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ مارکیٹ کے اندر آپ جا کے کہتے کیوں ہیں کہ یہ مجھے گیز کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے گھور رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہاں کچھ قوانین کی مدد چاہیے ہوتی ہے. کہیں آپ قوانین کی مدد لے رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ اپنے رشتوں کی مدد لے رہے ہوتے ہیں، کہیں آپ سماج کے گروہ کی مدد لے رہے ہوتے ہیں، اور سماج کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ نہیں. یہ ہمیں یاد ہے جس وقت ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے تو ہم نے بڑے بزرگوں کے سنا اور ہمیں ہمیشہ ہم نے یہ الفاظ سنے کہ خبردار کوئی جو ہے عورت کی طرف یوں آنکھ اٹھا کے دیکھے. سب عورتیں جو ہیں گاؤں کی وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی. اب یہ جو تصور ہے گاؤں کے اندر کہ سب گلی سے گزرنے والی عورت جو ہے آپ نظر نیچی آپ کر کے گزرو گے تاکہ وہ عورت گزر جائے، تو یہ بھی تصور تو اسی معاشرے کے اندر موجود ہے.
हाँ इसी मुआशरे के अंदर मौजूद है, इसी मुआशरे के अंदर मौजूद है कि माँ के पाँव नीचे जो है जन्नत है, इसी मुआशरे के अंदर मौजूद है कि बहन के सर की चादर आपने संभाल के रखनी है, इसी मुआशरे के अंदर मौजूद है कि औरत आपकी इज्जत है और आपकी घर की औरत आपकी इज्जत है और आपकी गैरत है। तो ये अच्छी चीजें जो हैं उनको कबूल कीजिए। हाँ, जो बुरी हैं उन पे ज़र्ब लगाइए जोर से, और जोर से ज़र्ब लगाइए ताकि वो हमसे दूर हो सके। वो हमारे अपने रवैयों में भी हो सकती हैं, हमारे कवानीन में भी हो सकती हैं और कहीं भी हो सकती हैं। सो उनको निशानदेही होनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा। मेरा ख्याल है मुख्तसर से वक्त में हमने इसके खासे पहलुओं पर बात की है आज, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सुनने वालों के जहन में कुछ नई चीज़ें आई होंगी, कुछ मुख्तलिफ बात आई होगी। और असल बात यही है कि मसाइल का इनकार नहीं करना, बल्कि उन मसाइल को अपने तनाजुर में, अपने माहौल में और अपने अंदाज में, अपने अपने वैल्यू सिस्टम के अंदर रख के देखेंगे, समझेंगे, तज्जिया करेंगे और वहीं से कोई मुकामी हल बरामद करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर इम्पोर्टेड चीज़ को एज इट इज़ हम अडॉप्ट कर लेंगे, नारे लगाएंगे, तो शायद कुछ लोगों का भला तो हो जाएगा, लेकिन माशरे में औरत के साथ या किसी भी सिंफ के साथ जो उसके मसाइल है उसके हल की जानिब शायद हम ना बढ़ सकें। अच्छा हमीद साहब, इसमें एक सवाल और ये भी बनता है कि हमारे यहाँ रिवायती तौर पे ख़वातीन को हमारा माशरा और हमारे मर्द जो ख़ास उसको देते हैं, रिस्पेक्ट देते आए हैं, इज़्ज़त देते आए हैं, या कुछ ऐसे हुकूक, कुछ ऐसी चीज़ें जो मर्द की निस्बत खातून को हम ज़्यादा देते हैं माशरे में, रिवायती तौर पे सदियों से चला आ रहा। हमारी औरत चूँकि उसकी आदी है उन तमाम हुकूक की और तमाम ट्रीटमेंट की। अब मसला ये हुआ कि नई आज की औरत जो पढ़ लिख गई है, जो घर से बाहर निकलती है, जॉब करती है, जो खुद कमा रही है, खुद खर्च कर रही है, वो तमाम रियायतें, वो तमाम हुकूक लाशऊरी तौर पे तो चाहती है, बाज़ औक़ात शऊरी तौर पे और अक्सर औक़ात लाशऊरी तौर पे। खा वो कतार में लगने का मामला हो, खा वो टायर चेंज करने का मामला हो, या और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, जो ऐसे मसाइल जब कभी होते हैं तो वो फ़ौरन से जब ये कहती है ना कि आपके घर में माएँ बहनें नहीं हैं या आपको औरत की इज़्ज़त करना नहीं आती, तो वहाँ पे बेसिकली अपने लिए वो वही एक्स्ट्रा स्पेस मांग रही है, उसी रियायत की तलबगार है। और दूसरी जानिब वो नारा मगरिब का, आज़ादी का, बराबरी का, तो ये तज़ाद जो है इसको आप कैसे देखते हैं, उसका क्या हल है, कोई हल है भी या नहीं? देखें, ये तो मसला बुनियादी तौर पे यही इशू है जिसके ऊपर समझा जाना चाहिए, और हम जिसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि इसमें बहुत सारे यानी जिंदगी जो है जहां औरत बिता रही है और मर्द बिता रहा है, वो ज़मीनी हकायक जब तक आपके सामने नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सके। यहाँ की जो औरत है वो खानदान के साथ रहना जानती है, हाँ, वो उसी के अंदर खुशी महसूस करती है। सही। यहाँ की औरत अपने बाप की खिदमत करने में फख्र महसूस करती है, उसकी इज्जत में फख्र महसूस करती है, उसकी साइकी है। यहाँ की औरत जो है वो अपनी बहन के, यहाँ का जो मर्द है वो अपनी बहन के सर की चादर होता है और उसका वो एहतराम करना जानता है और कराना जानता है। यहाँ वो अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत तलाश करता है और उसकी खिदमत करना चाहता है। उसे समझ आया कि ये अब ये सारा कुछ जो है ज़ाहिर औरत के साथ एक खसूसी ताल्लुक कायम हो जाता है उस खानदान के अंदर रहते हुए, और एक स्पेस बनती है उस औरत के लिए जिसके अंदर वो खुशी कशीद करती है। अगर वो उस माहौल से आप उसे निकाल के उसे अकेला कर देंगे और अकेला करके एक ऐसी जगह फेंक देंगे जहां रिश्ते मादूम हो जाएंगे और फिर उसे एक कमाने वाली मशीन बना देंगे, तो वो उस तरह खुश नहीं रह सकेगी जिस तरह उस खानदान के अंदर रहती। मुझे याद है वालदा साहबा जो थी वो गांव में थी और हम लोग मजबूरन यहाँ आ गए, तो वो छोटे भाई के पास थी और हमें जब वो बीमार रहने लगी तो हमने कहा कि नहीं, उन्हें यहाँ आना चाहिए। हम बार बार जाते थे, हर हफ्ते जाते थे और उनकी मेहनत करते थे, भाई आप आ जाए। तो हमें बड़ी दिक्कत हुई उन्हें यहाँ लाने में, और यहाँ फिर जब तक इर्द गिर्द घर 4-5 नहीं बन गए तब तक वो नहीं आई, इसलिए कि वो उसके अंदर मूव करती थी अपने रिश्तेदारों के अंदर। किसी का कोई फौत हो गया तो वो जा रही है और उसे तौकीर मिल रही है, किसी का कोई बहन मर गई है, किसी का कोई भाई फौत हो गया है, किसी की, तो वो रिश्तों के साथ जुड़ी हुई थी और उसी में खुशी महसूस करती। ये सारे रिश्ते जो थे वो खिदमत के थे और ईसार के थे, लेन देन के नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जब से ये रिश्ते ईसार और कुर्बानी और मोहब्बत से इसमें से मिन्हा हुई है और उसकी जगह पे इसके बदले मुझे मिलेगा क्या, ये सवाल सबसे अहम हो गया है। और औरत को रिश्तों से काट के आपने अलग करना शुरू किया है।
तो एक तो वो समाज के अंदर वो तबका जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जिसके हाथ में कारोबार है, जिसके हाथ में अदारे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर है, उसने इसे कम्युनिटी औरत को बना लिया है कि इसे कितना यूज किया जाएगा, इससे कितना कमाया जाएगा। हाँ, सही बात। तो एक तो वो रगड़ा उसे वहां लगता है, और जब वो घर आती है तो उसे कोई रिश्ता ऐसा नहीं मिलता है जो उसे सहारा दे और आसरा दे। नतीजा ये है कि वो अपने आप को अकेला महसूस करती है। हमारे इस मुआशरे के अंदर ऐसी फिजा की जरूरत है कि औरत घर से निकले तो भी उसे तहफ़्फ़ुज़ मिले, घर से बाहर जाए काम करे तो भी वहां उसका एहतराम मौजूद रहे, और वापस आए तो वो रिश्ते भी उसके न टूट जाएं, वो भी उसके मौजूद हैं। और ये बुनियादी सवाल है, मेरा ख्याल है जब तक इसे हम संभालेंगे नहीं और इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये सवाल तो वाकई बुनियादी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अभी इस पे बात करने के बावजूद इसके जवाब से बहुत दूर खड़े हुए हैं। यानी कि मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह अंधाधुंध हम मगरिब की तमाम चीज़ों को इख्तियार कर रहे हैं, हम मजबूर हैं डेफिनेटली। ये पूरा जो कैपिटलिज्म का एक सैलाब है, पूरा एक कॉर्पोरेट कल्चर है, एक सार्फियत का कल्चर है, फैशन भी वहीं से आ रहा है, ट्रेंड्स भी वहीं से आ रहे हैं, और माशरे की बुनत ऐसी हो चली है कि हम मजबूर हैं इसको इख्तियार करने पे। अच्छा, वो जो आपने जिस बारे में इशारा किया, हमारी सदियों से चली आई एक जो रवायत है औरत के अंदर, औरत के साथ हमारे मामले की, वो लाशऊरी तौर पे और जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे उसकी आदी है, उसको चाहती है, उसकी तलब में रहती है। अच्छा, अब ये बाहर जो खारिज में समाज में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और जो उसने किरदार इख्तियार कर लिया है, खा वो वर्किंग वेमन का हो, खा वो कमाने वाला हो, खा कोई भी, वो और ये रवायती जो किरदार है, इसके दरमियान एक बहुत बुनियादी तसादुम है, क्लैश है। आपने कह तो दिया कि हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें ये भी हो, वो भी हो, इज्जत भी हो, और बाहर जाके काम भी करे, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी वो देखे, उसका हिस्सा भी बने, वगैरह वगैरह। लेकिन ये शायद अमलन इतना आसान नहीं है। इनके दरमियान तो बुनियादी तजादात हैं, और शायद दुनिया में अभी तक मशरक हो या मुसलमान ममालिक हो, कहीं पे कोई ऐसा मॉडल हमें नज़र नहीं आता जिन्होंने कामयाबी से इन दोनों चीज़ों को बैक वक्त सिंक्रोनाइज करके इख्तियार कर लिया हो किसी हद तक भी। या हो सकता है आपकी नज़र ज़्यादा गहरी है, आपने कहीं देखा हो, कुछ हल कहाँ होगा, कुछ बताइए। ये आप जो बात कर रहे हैं, देखिए मैंने जिंदगी में इतना तो तजुर्बा किया है कि मैं बच्चियों का बाप हूँ, और मैंने ये महसूस किया है कि ऐसा ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रही हैं जॉब, लेकिन वो साथ ही साथ घर भी संभाल रही हैं। लेकिन इसमें एक बात ये हुई है कि मर्द ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। मैंने उनके साथियों को देखा है, उनके शोहरों को देखा है कि वो उसमें शरीक हुई हैं। अब उनका रवैया उन मर्दों जैसा नहीं रहा है जो हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों के था, कि वो आए हैं बाहर से और चारपाई के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठ गए हैं, और उसके बाद पानी भी उन्होंने कुर्सी पे उन्हें पहुंचाया जाना, हुक्का भी उनके वहां पे ताजा करके रखा जाना है, और सब कुछ उनकी खिदमतें वहीं पे होनी है, और उन्होंने कुछ भी नहीं करना है घर पे। अब ऐसा नहीं है। अब ये जो नौजवान हैं ये शरीक होते हैं उसमें, उसको पता होता है कि जो बच्ची है या जो मेरी साथी है ये काम करके आई है, और जाहिर है ये भी एग्जास्ट उस तरह जो है जिस तरह मैं हो के आया हूँ, तो मिलके हमें काम करना चाहिए। और इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप भी अगर किचन में साथ खड़े हो जाएं, इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप भी अपनी कमीज को अगर इस्त्री कर लें। इसमें कौन सा शर्म वाली बात है कि आप जूते को पॉलिश कर लेंगे? ये तो आपकी अपनी जूती है, और इसमें तौकीर है अपना काम करने में। हमारे समाज में खराबी वहां पैदा हुई है जहां हमने औरत से उतना ही काम या उतनी ही तवक्को रखना शुरू कर दी है जितनी के हमारे यहाँ नई जिंदगी में या पुरानी जिंदगी में मौजूद हम करते थे। और हमारे मर्द जो है वो घर में आके बस सिर्फ एक जाके एक उसमें मुअत्तल के तौर पर बैठ जाते थे, या हुक्म देने वाले बैठ जाते, हुक्मरान बन के बैठ जाते। बुनियादी चीज ये है कि मर्द और औरत दोनों जिंदगी में किस तरह शरीक होते हैं, एक दूसरे बात ये है इसके अंदर। जब तक आप शराकत की बुनियाद पे नहीं रहेंगे, और शराकत यह है कि आप कितना उसके साथ हेल्प कर सकते हैं। कुछ चीजें आप नहीं कर सकेंगे, मर्द बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा भाई, तो आप उससे वो तवक्को भी नहीं रखेंगे। लेकिन वो इतना तो कर सकता है कि अपना पानी खुद पी ले, वो इतना तो कर सकता है कि अपनी जूती खुद पॉलिश कर ले, वो इतना तो कर सकता है कि अपने कपड़े खुद इस्त्री करके पहन ले। तो यही होता है कि उसका बोझ थोड़ा सा कम कीजिए। वो बड़े मजे की बात थी। एक हमारे
निगार बेली हैं जो रूस की रियासतों से शायरा थी, तो उन्होंने एक बड़े मजे की नज्म लिखी थी। उन्होंने कहा था कि ये देखें, मैं जो है, अगर उसका जो मियाँ था रसूल अहमद, वो जो थे वो उन्होंने लिखी थी नज़में उस पे समुंदर के हवाले से, और बड़ी तवील नज़में मजे की लिखी। तो जब निगार के बारी आई है तो इसने कहा कि जनाब मैं भी समुंदर पे नज़में लिखती अगर मैं मर्द होती, लेकिन मुझे किचन में रहना पड़ता है, मुझे यहाँ पकाना, भूनना और तलना पड़ता है, और इसमें बर्तन जो है वो जल जाते हैं और उन्हें साफ करना पड़ता है, और मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि किसने नमक ज्यादा खाना है और किसने कम खाना है, किसने मिर्च तेज खानी है और किसने कम खानी है, और ये जो कपड़ा ऐसे दाग लग जाएगा तो इसे कैसे साफ करना है। तो मेरा सारा वक्त इसी में लग जाता है, तो मैं इस खिड़की के अंदर से ही नज़में लिख सकती हूँ। लेकिन बात यह है कि आप जब मर्द इस तरह हो जाएंगे कि वो एक तरफ बैठ जाएंगे, तो फिर औरत को आप एक जिंदगी न बना देंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ शरीक हो जाएंगे तो वो जो जहन्नम में भी होगी तो भी वो उसमें जिंदगी को, यानी उस तकलीफ के अंदर भी वो उसे वो तकलीफ महसूस नहीं होगी। तो ये शराकत बुनियादी चीज है, जब तक हम इसका एहसास नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा, शराकत असल चीज है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।